اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علیم و علمنی یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم یا رشید و رشدنی یا خبیر و اخبرنی یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لے کر آیا ہوں وہ ہے بندش، رکاوٹ۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کچھ نہ کر سکے، اور خاص طور پر یہ میرا موضوع ہے وہ لڑکے اور لڑکیاں، یا پھر وہ جن کے شوہر انتقال کر گئے، اور یا وہ جن کی بیویاں انتقال کر گئیں اور پھر ان کا دوسرا رشتہ نہ ہوا، اور کوشش کے باوجود بھی نہیں ہوا، اور وہ کنوارے لڑکے اور لڑکیاں جن کا کوشش کرنے کے باوجود بھی رشتہ نہیں ہوا۔ مثلا کوئی سلیقہ شعار لڑکی ہے، دیہات کی ہے، خاندانی ہے، اور کوئی شہر میں ہے، MBBS ہے، ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، انجینئر ہے، کچھ بھی ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود خوبصورت ہے، تب بھی رشتہ نہیں آ رہا۔ تو یہ عصر حاضر کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں اپنے دینی تعلیم میں نابلدی یا اس کا مکمل روحانی علم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ اپنی زندگی ایسے ہی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی زندگیوں میں یہ بندش اور رکاوٹ ہے، آج میں ان کو اس ویڈیو میں ایسا تعلیم دوں گا کہ وہ اپنا علاج خود کر لیں گے۔ ان کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی عامل کی، یعنی ہماری ضرورت نہیں پڑے گی، یا کسی پیر کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود اپنا علاج انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے۔ اب ہم سیدھے سادے اس ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس ویڈیو میں ہم علامات، تشخیص، پھر اس کا علاج بتائیں گے کہ ایک تو اس کی بندش کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، یہ کتنی قسم کی بندشیں ہوتی ہیں جو انسان پر آتی ہیں۔ جی آئیے ہم اب دیکھتے ہیں۔ ایک سحری بندش ہوتی ہے، سحر جادو۔ اگر کسی پر کرا دیا جائے تو اس کا کام کاروبار، زندگی کے مختلف شعبے اور ساتھ ساتھ منگنی بھی بند ہو جاتی ہے۔ منگنی شادی، یعنی اس کی سوشل کریڈیبلٹی، اس کے برین کے نیورانوں سے سوشل کریڈیبلٹی اس کی آف کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو شریر لوگ ہوتے ہیں، ایسا کرنے والے۔ اچھا، آگے جو عامل بھی ہوتے ہیں وہ بھی شریر ہوتے ہیں۔ سحری یا اسیبی رکاوٹ، سحر جادو، اسیبی رکاوٹ، جنات، اور پھر اس کے علاوہ سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے وہ قدرتی بھی ہوتی ہے۔ قدرتی رکاوٹ کی وجہ سے بھی ایسا ممکن ہو جاتا ہے۔ اب ہم ان کی جو ہے نا یہ کرتے ہیں تشخیص، اور اس کا مریض کی علامات، اور یہ جو ہے نا دیکھنے کے بعد ہم جو ہے نا پھر ان کی تعریف کرتے ہیں کہ کون کون سی بندش ہے۔ اب ہم سب سے پہلے آتے ہیں جادو کی طرف۔ مثلا جادو کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور جادو کی جو ہے نا اس کو تسلیم کرنا مسلمہ ہے۔ تمام مذاہب کے لوگ اسے مانتے ہیں اور اس کے اثرات کو بھی مانتے ہیں۔ یہ 3 طرح کا جادو ہوتا ہے: جنتر منتر تنتر، یعنی ایک لکھائی ہوتی ہے جسے ہم جنتر کہتے ہیں، ایک پڑھائی ہوتی ہے جسے ہم منتر کہتے ہیں، اور ایک جو ہے نا ٹونا
टोटका जिसे हम तंत्र कहते हैं यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यानी वादिय सिंध की तहजीब में। तो जो नाम इसका इस है, चाहे जो भी लो, लेकिन इसमें कुरान में भी इसका ज़िक्र है, और तमाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, गोस्पेल ऑफ जॉन, गोस्पेल ऑफ मैथ्यू, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, कोई भी किताब आप ले लें, कुरान नाम की कोई किताबें ले लें, ये जहाँ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हैं, तो इनमें सब में जादू का जिक्र है और इसके टोने टोटके का भी जिक्र है। अब मसलन इसकी अलामात ये हैं, हम मरीज़ को कहेंगे कि आप हमारे सामने बैठ जाए, या वो उसका बाप या माँ कोई सामने बिठा दे, और फिर जो है ना उस मरीज़ के पास अगर कोई तवीज़ हो, कोई लाकट हो, या कोई लोहे की धात की कोई चीज़ हो, तो वो उतार कर एक तरफ रख दें, और मरीज़ पर जो है ना शीशे का एक गिलास लाएं और शीशे के गिलास में पानी मरीज़ को दे दें। वो पानी के 2 घूंट पी ले, फिर उस पानी पर और उस मरीज़ पर आपने दम करना है क्या? 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और उस पर दम करें, फिर 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें, दम करें, फिर 7 बार चारों कुल पढ़ें और दम करें, और आखिर में 7 बार दरूद पढ़ें, दम कर दें मरीज़ पर। अब वो जो पानी पड़ा है उस पर भी आप दम करेंगे। अब हम मरीज़ की कैफियत देखेंगे, और फिर हम लगाएंगे कि मरीज़ पर क्या सहर जादू है, या असेबी खलल, जिन्नात का खलत है, ये हम यहाँ वादे कर रहे हैं। फिर आगे हम कुदरती चीज़ को देखेंगे कि कुदरती तौर पर क्या रुकावट आती है। अगर मरीज़ की कैफियत अब हम दरियाफ्त करेंगे, हाँ जी जनाब आप बताएं, आज आप पर कोई बोझ तो नहीं पड़ा, जो आपका दर्द था वो किसी चीज़ में कुछ दर्द था वो ज़्यादा तो नहीं हुआ, सर में दर्द तो नहीं हुआ? अगर वो ऐसा होता है, मरीज़ पर बोझ पड़ता है, वो बोझ महसूस करता है, तो ऐसे समय पर जिन्नात और असेब का दर्द है। अगर जिस्म हल्का हो जाए और कहीं भी चुभन महसूस हो, हाथ पाँव या जिस्म ठंडा हो जाए या गर्म हो जाए, या बदन पर चौंटियाँ रेंगती महसूस हों या कीड़े रेंगते महसूस हों, तो ये जादू की अलामत है। अब आखिरी स्टेज में दमशुदा पानी जो है ना मरीज़ को पिलाएंगे। अगर सहका नमकीन हो या गले में फंदा लगे या लेसदार पानी लगे, लेसदार लगे महसूस हो, जैसे कोई मसलन जैसे लेसदार कोई मादा होता है भी गले में जा रहा है, गले में बढ़ जाए, तो ये जिन्नात का असर होता है। अगर पानी कड़वा हो जाए तो फिर जादू है। लेकिन पानी को ऐसा ऐसा चखें, बाज़ औक़ात ये महसूस नहीं होता, लेकिन आखिरी घूंट में जाकर महसूस होता है, तो ऐसा ऐसा चखें। और बाज़ औक़ात पानी पीने के कुछ अरसे बाद भी उसका ज़ायका ख़राब होता है। जादू या असेबी मरीज़ के सर, गर्दन, कंधे, कनपट्टियों पर बोझ रहता है। अमूमन हर वक्त पाँव ठंडे या गर्म हो जाते हैं, दिल में वीरानी सी होती है, घर में दिल नहीं लगता, बाहर जाए तो दिल लगता है, घर आए तो दिल नहीं लगता, वो चाहे लड़की हो लड़का हो। ख़यालात सताते रहते हैं, बुरे ख़यालात रहते हैं, मैदा मसाना ख़राब होते हैं, औरतों को मखसूस बीमारियां शुरू हो जाती हैं, मखसूस अयाम में अप डाउन हो जाता है। रिश्ता देखने वाले आते हैं, एक बार देख कर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस ही नहीं आते। रिश्ते में 100 वाइब निकाल देते हैं, हालांकि लड़की सली का शुमार होती है या लड़का शैली का शुमार होता है, और बहुत बड़ा पढ़ा लिखा होता है, काफ़ी कामयाब होते हैं। मेरे स्टडी में तो ऐसे कई लोग हैं जिनके रिश्ते मसलन बंधे हुए हैं, जिनको काफ़ी लोगों का हम इलाज भी कर चुके हैं। अच्छा, अब जो है ना हम आगे जाते हैं। एक अब ये तो हो गया कि अब इसका इलाज भी वही है जो आपको बताया गया है कि आप उस पर ये दम करें अपना। अव्वल जो है ना 7 बार दरूद, 7 बार आयत फ़ातिहा, 7 बार आयतुल कुर्सी, 7 बार चारों कुल, आखिर में 7 बार दरूद, बार बार दम करते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसको अफाका होगा। हम आगे चलते हैं अब कुदरती रुकावट की तरफ। हाँ, आखिर में आपको ये भी बताते चलें कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किसने इन पर सहर जादू, किसने बंदिश कराई है, तो आप रात को, अगर वो शऊर वाला है जिसका रिश्ता बंद है, तो वो रात को
अपना शुमालन जनूबन सो जाए, क्योंकि यहाँ से अल्फ़ा बीटा थीटा बीटा गेमा लहरें जो है ना आती हैं, जो नींद की लहरें होती हैं। तो उस लहरों में इस तरफ शुमालन जनूबन सोना चाहिए, और मुँह किबला की तरफ करके 100 बार दरूद पढ़ो और 70 बार सूरत फातिहा पढ़ो, फिर जो ना 100 बार दरूद पढ़ो और सो जाओ। इंशाअल्लाह ताला वो ये रहनुमाई हो जाएगी आपको। अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक दिन नज़र नहीं आता, यानी आप मेरा मुफरद, मेरा नाम क्या दादा है 178 178, तो 16 हो गए और मुरक्कब अदद और मुफरद 7 हो गए, तो 7 दिनों में तो मुझे आराम से नज़र आ जाएगा, नहीं तो 16 दिनों में तो आराम से नज़र आ जाएगा कि फ़लाँ बंदे ने किया। तो ऐसे आप भी अपने नाम के मुफरदात से देख सकते हैं, या ना भी आप मुफरदात बनाए तो पढ़ते रहें तो देख लोगे। अब हम जो आखिरी रुकावट की तरफ आते हैं वो है कुदरती तौर पर रुकावट। जो कुदरती तौर पर रुकावट आती है वो लोगों में वो कैसी होती है, वो बंदे को पता भी नहीं चलता, यानी उसका ब्रेन का इन्फ्रारेड खुला होता है, तो उसमें वो आकर VHF UHF सिग्नल के ज़रिए दाखिल हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि जो कुदरती रुकावट होती है वो क्या होती है। रिश्तों में, काम कारोबार में, नौकरी में, किसी चीज़ में आप रुकावट, कारोबार में, तो कुदरती रुकावट ये है कि रिश्ते में जो रुकावट आती है वो हिंसा 8 है। अगर किसी के ज़िंदगी में 8 के हिंसे की मदाखलत हो तो वो काफ़ी हद तक उसमें नहूसत घिरी रहती है, और वो 8 के हिंसे के सदका वर्द वजीफ़ा करे तो तब इंशाअल्लाह ताला उनमें वो रुकावट महसूस नहीं करेगा। 8 का हिंसा एक कालिंग नाम वाला होता है, पुकारने वाला नाम। मसलन अगर किसी के नाम का पहला हर्फ हे है, फे है या ज़ुआद है, तो ये लोग काफ़ी रुकावटों का सामना करते हैं। फिर अगर किसी के पैदाइश में, अगर किसी की पैदाइश हफ्ते वाले दिन होती है तो भी काफ़ी हद तक उसमें वो रुकावटें महसूस करेगा। अच्छा, अब अगर कोई मंगल वाले दिन पैदा होते तो भी वो कुछ रुकावटों का सामना करेगा। अब आते हैं, अगर किसी पर साड़ सती चल रही है, ये कुदरती रुकावट है, तो टाइम है, वक्त है, अल्लाह ताला की तरफ से आया, अल्लाह ताला की तरफ से गुजर जाएगा। जिसकी मिसाल हज़रत यूसुफ के 7.5 साल बंद रहे थे, और पाक पैगंबर की ज़िंदगी में मिसाल शाब अबी तालिब के वाक़ियात हैं जो आप पर गुजरे बड़े मुश्किल। तो ये साड़ सती होती है जो कि कुदरत की तरफ आती है। एक टाइम होता है, पीरियड वो गुजरता है, उसमें अगर उसका तदारुक ना किया जाए, वो भी इस 8 के हिस्से के नीचे आती है, ज़ोल सितारे की होती है। अच्छा, अगर फिर यह है कि अगर किसी का कोई रिश्ता देखने आ रहे हैं मंगल वाले दिन, तो वो रिश्ता ज़रा, और हफ्ते वाले दिन आ रहे हैं, मंगल वाले दिन और हफ्ते वाले दिन, तो वो ज़रा कामयाबी की तरफ मुश्किल हमकिनार होता है, उस वो रास्ते में उनके मुआहदा टूट फूट जाते हैं। अब इसके अलावा अगर कोई बंदा मसलन हफ्ते वाले दिन के अलावा अगर उसके जो है ना ज़ैचा पैदाइश में अगर वो 8 का हिंसा या हफ्ते का दिन आता है तो भी वो जो है ना अच्छा नहीं। अच्छा, अगर किसी की पैदाइश कमर दरकरब में हुई है, या किसी का, ये तो कुदरती है ना, कुदरती रुकावट में हम इसे शुमार करेंगे। हाँ, अगर कोई अपना कमर दर अकरब में मंगनी तय कर दे, या कमर दर अकरब के दिन गुजर रहे हों और वो मंगनी शादी के लिए आ जाएं, और अगर गिरहन लगा हुआ हो और मंगनी तय पा जाए, तो ये चीज़ें जो है ना मुसलमान को देख कर चलनी चाहिए। और चाहे कोई भी दुनिया का बंदा हो, तो ये इस वक्त सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण, इस दौरान अगर कमर दर अकरब के दौरान, ये जो है ना रुकावटें होती हैं, जो कुदरती तौर पर रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। इन कुदरती तौर पर रुकावटों को ख़त्म करने के लिए ये जो आपको विर्द वज़ाइफ बताए गए हैं, यूँ ही करें। और फिर आप जो है ना जादू को ख़त्म करने के लिए अल्लाहु अकबर भी पढ़ सकते हैं, या हय्यो या कयूम भी पढ़ सकते हैं, आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं, और सूरत जो है ना हशर की आखिरी आयतें पढ़ सकते हैं, सूरत बकर की आखिरी आयतें पढ़ सकती हैं। और ख़ास तौर पर मत्ताउज़ुबीन, ये ताउज़ुबीन जो है ना, ये भी आप पढ़कर सहर जादू ख़ुद ख़त्म कर सकती हैं। अच्छा, इस अल्लाह ताला पर रहमत फरमाए। इंशाअल्लाह अगर कोई बात हो तो मेरा फ़ोन नंबर है 0301 74 24 655, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0300 777 8695। आप मुझसे मुफ्त मशवरा और मुफ्त रब्ता कर सकते हैं। हमने आज तक किसी से कोई मशवरे के
اس کے برج بنانے کے کسی چیز کے کوئی پیسے نہیں لے. وما علینا الا البلاغ المبین.